this year January only it was founded. So one part is Medispa and one part is Academy. Medispa is like dealing with the clients for all these treatments. और academy में we have post grad student we have different types of courses. One is cosmetic gynecology, so there we have post grad gynecologists coming for cosmetics to learn the cosmetic procedures in gynae. And then otherwise MBBS, BDS and even many salon owners, science graduates, they also come to learn all these procedures. So on an average 1 or 2 courses we run per day. That is why this place for that academy. So till now we must have run almost 14-15 batches of students for that. And besides Medispa chalta hai, so all the procedures, clinical procedures are also done here. So let me just affiliation. And for our academy we are affiliated with International Education Board UK. So our students, once they learn from here, they can practice all these aesthetic procedures even in UK. They just have to clarify, kind of a local exam there, but it is recognized there. And that exam can also be conducted from our academy. So if somebody wants to go abroad, so even then they can do the courses, learn the courses, give the exam and go. ड्यूरेशन क्या इसका है मैम? कोर्सेज का ड्यूरेशन हमारा जैसे प्रोफेशनल एस्थेटिक्स है, सो दैट इज फॉर 6 days. Then cosmetic gynecology is for 5 days. Then हेयर ट्रांसप्लांट नहीं वो नहीं करते हम. ट्रांसप्लांट अभी नहीं स्टार्ट किया. एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस वो उसमें कुछ काफी इश्यूज हैं. So that is why अभी we not even thought of unless and until we are able to fulfill the rules and regulations. Any and everyone is into it. हाँ. मतलब समझिए ना, बॉम्बे में इतनी सारी अचानक एकेडमीज मशरूम अप हो गई, वो सारी चीजें भी. So aesthetics is actually तो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 days. Yeah. एंड उसका क्या क्या उसमें कवर है, उसका एक फॉर एग्जांपल तभी तो आगे फिर रेफरेंस जैसे प्रोफेशनल एस्थेटिक्स का कोर्स है हमारा. सो इन दैट 6 days में क्या? हाँ बताती हूँ, डे वाइज बताती हूँ आपको. जैसे डे 1 पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्किन एनाटॉमी इन रेफरेंस टू द कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस. देन वी विल डिस्कस ऑल द, जैसे एनाटॉमी होती है मेडिकल कॉलेज में पहले, तो उस तरह से हमने एनाटॉमी करी. देन द इवनिंग इज डिवोटेड टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजी पार्ट, मीनिंग डीलिंग विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स that we have in our preparations, explaining that. So day 1 is usually ends there. Then we show them all the products. For example, the products which are lying at the back. So we ask them, okay, now there are 3 types of vitamin C. Tell me which one is the best out of these. So how to make out which product what do we need in a different product. So that is essentially day 1. Then day 2 we start with the lasers. So basic theory of laser is covered. Then the different types of lasers are covered. Then we start with the basic. For example, day 1 we will do laser. Day 1 of the laser we will do laser hair reduction. So theory, and then they do the hands-on of the same. Then we will come to the other type of laser. For example, PicoSure. So uses of PicoSure as for the treatment, like pigmentation के लिए है ये laser. So all sorts of those things are discussed along with the medical facial that we can do with the PicoSure laser. So cosmetic application and treatment part, दोनों are covered. And then the hands-on of the same. Then there is IPL, which is again one of the types of laser. So that is also theory is done, then the hands-on. So every procedure that we do the hands-on simultaneously. So now the day 2 and day 3 are over. Then comes day 4 and 5. So in that we do chemical peels, then cryolipolysis, HIFU, and cautery, and what else, micro needling, PRPs. So all that is done on day 4 and 5. टर्मिनोलॉजी हाँ वो बताती हूँ अभी, वो क्योंकि वहाँ पे बात करी थी. So terminology है, जैसे HIFU है. HIFU is high intensity focused ultrasound. So this is one of the ways of doing a non-surgical facelift. एक तरीका है सर्जरी से करना, दूसरा तरीका है इंजेक्शन से लिफ्ट करना, तीसरा जो बंदे सर्जरी से भी डरते हैं और जो इंजेक्शन से भी डरते हैं तो उनके लिए अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट है. एज सिंपल एज डूइंग एन अल्ट्रासाउंड. पेनलेस प्रोसीजर लास्ट फॉर 1.5 hours. द प्रोसीजर इज डन इन 1.5 hours एंड द रिजल्ट्स लास्ट ऑलमोस्ट फॉर 1.5 to 2 years. ये देखो, ये HIFU है जिसकी हम बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी वाइज.
अभी आपको जैसे इसमें चेंजेस देखिए आप, these wrinkles you can see, then you see the, because the entire face comes down due to the gravity, so you can see the jawline. And just after the procedure, after spending 1 hour with us, you see the change in her. She has a totally stretched out skin, perfect jawline, all the wrinkles are gone. These fold which was so deepened, that fold is also gone. So basically aging ऐसे ही होती है. अब एक example जैसे मैं आपको बताती हूँ. You see my face, forget the rest of everything. Just look at my face. Now this is my face. If I just lift it like this, so my age, if you see clear, तो my age just goes down like 5-6 साल का उसी. So this is essentially what HIFU does. कि पूरा tightening कर दिया, lift कर दिया, बिना किसी pain के, बिना किसी surgery के, बिना किसी injection के. And how safe and how harmful is it? सारे नॉन इन्वेसिव है ना. नॉन इन्वेसिव है, कुछ इसका कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है. सो जाते हैं पेशेंट कराते कराते, और सो के जब उठते हैं तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. सी से तो घबरा पेशेंट जाते हैं. नाउ यू सी दिस, शी इज इजीली, शी इज सिटिंग कंफर्टेबली. दिस इज हाउ इट बी डन. ये दिस इज द हाइफू मशीन and this is applicator. So ये face पे हम ले जाते हैं shots देते हुए, and she is talking normally. We are having a general talk and the procedure is done. And in 1 hour there is total transformation. कोलेजन स्टिमुलेट होता है. सर क्या होता है, हाइफू फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है ना, तो बीम्स आती हैं उसकी. सो बीम्स जाकर के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन और कोलेजन जो डर्मिस में प्रेजेंट है, वहां पे इट क्रिएट्स माइक्रो इंजरीज. So जब भी ट्रॉमा होगा हीलिंग होगी. So by doing that trauma we are calling for the healing process of the body. Immediate इसमें तब, लेकिन ये इमीडिएट तो होगा नहीं इतनी जल्दी, it will not happen. So immediate change क्यों आता है? Because वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की टाइटनिंग होती है, that is instant. It is like एक क्रश्ड कपड़ा है और उसको आपने आयरन कर दिया. So that kind of a change is it's instant. और it keeps on improving over a period of 6 weeks. क्योंकि वो कोलेजन तो धीरे धीरे बन रहा है, तो वो रिंकल्स धीरे धीरे और कम होते जा रहे हैं. So this is the basic principle of how the HIFU works. I mean it is a very popular procedure क्योंकि कोई सर्जरी नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, nothing extraneous is going. और वेव्स इसकी इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अगर इस प्लास्टिक के ऊपर, अगर मैंने अपना, अगर ये प्लास्टिक हो और मैंने इसके ऊपर अपना ट्रांसड्यूसर रख के ऑन कर दिया, मतलब शॉट्स दे दिए, तो इट विल क्रिएट परफोरेशंस in this glass, but not on the surface, on the inside. इसीलिए इसको कोई डाउन टाइम भी नहीं होता. जब यहाँ से करा के जाते हैं फेस पे कोई रेडनेस नहीं होती, कोई स्वेलिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता. जस्ट इनसाइड ओनली द चेंजेस आर हैपनिंग. तो आप करवा के जाओ, इट कैन बी अ लंच टाइम प्रोसीजर करवा के, और दिस इज हाइफू. ऑर्डिनरी लेजर में तो थोड़ा होता है ना, इरिटेशन और रेडनेस वगैरह. कुछ नहीं होता. डाउन टाइम, मिनिमल डाउन टाइम टाइप ऑफ लेजर पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने जो सिंपल वाला लेजर जिससे सब फेमिलियर है, लेजर हेयर रिडक्शन, उसके साथ जब जाते हैं तो कोई डाउन टाइम नहीं होता, कोई इरिदिमा नहीं होता, कोई स्वेलिंग नहीं होती. उसमें भी हम क्या करते हैं, व्हेंस वी स्टार्ट द प्रोसीजर वी आस्क देम कि आप कंफर्टेबल हो. इफ दे आर कंफर्टेबल वी इंक्रीज द इंटेंसिटी. सो वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पावर टिल द टाइम दे आर कंफर्टेबल. So once they reach that maximum, तो we try to coordinate कि उनके पेन और रिजल्ट्स की एफिशिएंसी के बीच में एक बैलेंस बना के उस लेवल पे हम शॉट्स देते हैं. So that is laser hair reduction. अब एक और टाइप का लेजर है, जैसे ये कार्बन पील है, अभी आपको दिखाते हैं. Now this is a laser based facial. What is being done is a carbon gel is applied onto the skin. Now this pigment, it will only take up the carbon. The patient is not in any kind of pain. All that you hear is a sound. It is a photoacoustic effect that we are giving the shots of the laser, and that sound is heard. But patient is totally comfortable. There is no pain felt. और उसके बाद कोलेजन बिल्ड होता है और वाइटनिंग इफेक्ट आता है. जो हीट जनरेट होती है उससे वाइटनिंग होती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉलीवुड फेशियल और रेड कारपेट फेशियल. Because before any important event, all the celebrities they get this done for that whitening and glow on the face, and there is no pain, no downtime. Again, it is a laser without downtime. Downtime होता है. फ्राइडे की मीटिंग से. और डाउन टाइम होता है सर जब इसी को हम पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं. व्हेन वी आर डूइंग इट डायरेक्टली ऑन टू द फेस, बिकॉज यहाँ तो पिगमेंट वो कार्बन जेल है जो हमने लगाया था, लेकिन जो पिगमेंटेशन हमारी स्किन में है
जब हम उसको डायरेक्टली टारगेट करते हैं तो थोड़ा इरिदिमा स्वेलिंग है जिससे डाउन टाइम आप समझो कि 1 से 2 दिन का होता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन। सेम लेजर इज बीइंग यूज्ड फॉर टैटू रिमूवल। सामने ही अब डिसअपीयर हो रहा है as soon as the laser shots are being given। दोबारा प्ले करना ये ऑन द स्पॉट उसी टाइम हो जाएगा। हाँ, ये बोला नहीं, हीलिंग धीरे धीरे होती है बट Healing, काफी मतलब बचा आप ये white spots देख हल्का रहे हो सा ना स्कार बीच होके में। फिर होगी। not Scarring है। if it is done properly then most of the times scarring वो previous उनके प्रोसीजर की होती है, क्योंकि टैटू का मतलब कि उन्होंने डर्मिस में पिगमेंट डलवाया है, ठीक है ना। तो उस समय अगर किसी ने डेप्थ ज्यादा कर दी तो स्कारिंग होगी, क्योंकि जब हम डर्मिस में नीचे जाते हैं स्किन में बहुत डीप जाते हैं देन ओनली स्कारिंग हैपेंस। So if at that time the person who was doing it was not doing it properly, the scarring is as a consequence of that। शुरू में वो hidden होती है क्योंकि ऊपर पिगमेंट होता है, जब पिगमेंट निकल आता है तो वो स्कारिंग आ जाती है, लेकिन because of the laser there is no scarring। नहीं अब Tattoo जैसे जब removal लेजर is हील होगा, ये आपने जब इससे रिमूव किया तो 2-3 डेज के लिए वो Erythema, रेडनेस redness is there but scarring is not there। बट As a consequence of laser there is no scarring। ठीक। Then this is cryolipolysis। यहाँ अभी पढ़ाई रहते तो लिखा हुआ है क्रायो मतलब फ्रीज फैट ब्रेकिंग द फैट बाय फ्रीजिंग इट। सो इन दिस चेम्बर दिस एंटायर स्किन फोल्ड हैज बीन सक्ड और इसको हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपोज करते हैं तो ये फैट लाइस हो जाता है। तो दिस इज यूज्ड फॉर बॉडी कंटूरिंग। दैट स्टबन, जैसे जिम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, पतले हो गए लेकिन कुछ स्टबन एरियाज हैं जो तंग कर ही रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये क्रायोलाइपोलिसिस या फैट फ्रीज ट्रीटमेंट है व्हिच वी डू। अच्छा, इट इज एबल टू सक द फैट। सी दिस इज व्हाट ये जो एक बार दिखाओ, ये जो है ना ये पूरा का पूरा स्किन के फोल्ड, ये पूरा स्किन है ना व्हिच इज इनसाइड दिस इसके अंदर एप्लीकेटर। अच्छा। वैक्यूम से इसने पूरे उसको सक कर स्किन के लिया, वो उसको पूरे फोल्ड घेर को लिया। सक कर लिया आपने Then- अंदर, और उस चेंबर के अंदर का टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री ठीक है। सेंटीग्रेड। तो जो फैट सेल्स हैं वो कोल्ड इंजरी को, जैसे हमें कोल्ड इंजरी नहीं हो जाती गॉट इट नो, तो दैट फैट इज लाइस्ड, इज मेल्टेड। इट इज मेल्टेड। जैसे उन्होंने देखा बेसिकली बच्चों में कि जब वो अपना आइस कैंडी खाते रहते थे तो उन्हें यहाँ डिंपल्स आ गए, क्योंकि यहाँ का जो फैट है उनका वो डिसॉल्व हो गया। ठीक तो है। हीट की बजाय फैट जो है वो कोल्ड इंजरी को ज्यादा ससेप्टेबल। एंड देन दिस मशीन सक्स द फैट। It is not taking, It is not so sucking, overlying melts skin the is fat. intact। It इसके अच्छा, वो ऊपर देखो ये spread out membrane, वो फैट देखो मैं निकल जाएगा बताता बाद हूँ, ये में। मेम्ब्रेन है ना, हाँ, इट इज अ हाँ, क्रायो, क्योंकि अगर इंजरी -10 पे करेंगे तो स्किन भी तो बर्न हो जाएगी, जैसे फैट बर्न हो रहा है, कोल्ड बर्न्स जो भी हो रहे ठीक है। हैं, तो उसको बचाने के लिए हमने ये क्रायो प्रोटेक्टेंट मेम्ब्रेन लगाई हुई है, क्योंकि दिस स्किन इज आल्सो गेटिंग एक्सपोज टू -10। तो जब हम इससे निकालते हैं तो स्किन पे कुछ भी नहीं होता, बिकॉज स्किन इज बीइंग प्रोटेक्टेड, इनसाइड फैट इज बीइंग एक्सपोज टू -10। अब जो वो फैट है, बिकॉज हमारी जो नंबर ऑफ फैट सेल्स होती हैं जो बचपन में होती हैं वही रहती हैं, देयर नंबर डजंट चेंज, ओनली द साइज चेंजेस। जो मोटा या पतला होता है बंदा वो फैट सेल के साइज की वजह से ही होता है। सो इफ बाय वन सिटिंग 30% ऑफ द फैट सेल्स इन द एरिया व्हिच इज इनसाइड आर डिस्ट्रॉयड टोटली। तो वो फैटी एसिड्स जो निकलते हैं वो लिम्फेटिक से बॉडी के ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, सो दैट नेवर कम्स बैक। So number of fat cells are reduced. तभी And वो it leads to the reduction of weight as well. No. अब इसका ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये क्यों, इसको मैं कैसे, हाउ डू आई एक्सप्लेन इस कि जैसे हम मिल्क बॉईल करते हैं तो सारी मलाई ऊपर आ जाती है ना, मलाई इज द फैट ऑफ द मिल्क, तो वो लाइट होती है वेट में, तो इसलिए ऊपर आई है, तो फैट इज सो लाइट, तो इससे वेट में फर्क नहीं आता। नहीं आएगा। कंट्रोल जैसे- करता नहीं सर, कंटूर अच्छा इंच लॉस होगा। हाँ, inch loss होगा। नहीं बट अभी आपने बोला ना कि जिससे वो सारा लिम्फेटिक सिस्टम से ड्रेन आउट होगी। ठीक है, तो वो इतना परसेंटेज नहीं होता ना। अब कोई 70 kg का पर्सन है, मतलब वो ग्रामेज ही होगी, तो ग्राम्स में निकला, ग्रामेज ही होगा। हाँ, तो ग्राम्स में निकलेगा मतलब तो उसको 12 घंटे के लिए मशीन में डालोगे तो कितना टाइम लगेगा हमें- इसको? आ जाओ। एक वन स्पॉट पर एप्लीकेशन, पता लगे फ्राइडे को -10 हमें छोटा में बन गया। तो बहुत सीटिंग चेंज।